जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ 1% ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 100%, 500% ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਲੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਬਟ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਕੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰੇ ਓਵਲੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫਰੋਮ ਨੋ ਵੇਅਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਿਚਨ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਵੇਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਕਿਵੇਂ,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਤੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਉਸ 'ਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਈ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕੱਲ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਆ ਸ਼ੌਕਡ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਇਸ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਾ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਂਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਿਰੇਟਸ ID ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਸਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਉਸਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਆ ਉਰੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਨੰਦਲੈਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਉਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ 31 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬਾਪ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, इन्ना सारा लव यू गुरु जी, इन्ना सारा लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना। इस सृष्टि के हर कण कण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 20। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 सीताराम 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 राजा राम। जय गुरु जी। संगत जी हीलिंग डे बहुत जल्दी ग्रुपा ने, हनुमान जी ने बहुत ब्लेस तरीके से कंप्लीट करवाने वाले हैं। शुक्राना है। ग्रुपा ने कहा है 9 बजे के बाद रात के सुंदरकांड का पाठ करना है, पर मैं सोच रही हूँ चला दूंगी। 40 दिन तक तो कम से कम ही करना ही है संगत जी। ग्रुपा ने एक और चीज़ बोली थी, 40 दिन तक लगातार एक मंदिर में जाना है 40 दिनों तक, और 41वें दिन तक वो मेरी विश पूरी करेंगे। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। संगत जी ग्रुपा का अभी अभी एक मैसेज आया जिससे पढ़ के, वैसे तो बहुत जो मैसेजेस होते हैं शायद मैं नहीं रिपीट कर पाती हूँ, लेकिन ये वाला ऐसा है जो ग्रुपा करवा रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं। ग्रुपा ने कहा बेटा फिलहाल जिस मुसीबत से तू भाग रही है तेरे घर तक पहुँचने वाली है, लेकिन मैंने उसे टाल दिया है। तुरंत शुक्राना कर और भक्तों को भी भेज, मेरी चीज़ों को, दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, और आपकी बेटी ये अरदास करेगी कि गुरुपा अगर किसी भी कारणवश आपकी बेटी इग्नोर करती है, गलती करती है, या आपकी किसी भी ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को हल्के में लेती है, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, उसे बख्श दीजिएगा, लेकिन कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा मालिक। संगत जी कृपा के आगे खड़े होकर शुक्राना सत्संग करने का इतना बड़ा महत्व है, जिसे हमें लगता है फ्यूचर में और भी अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे एक अंकल ने बताया था कि जो सत्संग, हम अगर सत्संग चल रहा है उसके बाद जो सत्संग शेयर होते हैं वो कर दिया जिसने, तो उसकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और संगत जी गुरुपा ने हमेशा से मुझे वो एक हिम्मत दी है कि सत्संग शेयर करने की, जब भी सत्संग कहीं भी होता था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक कितने सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ। गुरुपा जब पहले आंखों की ब्लेसिंग के सत्संग सुनवाते थे, कुछ टाइम बाद आंखों में धुंधलापन आया था और गुरुपा ने ब्लेस किया। अब बीच में गुरुपा सत्संग सुनवाने थे पैरालिसिस के और कमर में दर्द के, लोअर बैक पेन जो होते हैं, तो वो सुनवाते सुनवाते अब वो वहाँ पे वो दर्द शुरू हो चुका है। लेकिन गुरुपा की इतनी रहमत है, वो दर्द सहनीय है, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि जो काढ़ा उन्होंने ब्लेस किया है वो ज़रूर लेना है। गुरुपा की जोत का घी जो है उससे मालिश करनी है, और चंदन तिलक से जल प्रसाद तो हमने लेना ही है संगत जी। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग में अभी अभी गुरुपा ने आंखें खोली वापस कि किस तरह से कल जो एकादशी गई थी उस पे एक घर पे एक आंटी की मदर इन लॉ ने उनके साथ किस तरह से गलत काम करने चाहे, और गुरुपा ने कैसे उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार कल के दिन पे, परसों रात से ही मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे बच्चों को अपने पास गुरुपा के बच्चों को बुलाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि लड़ाई भी की, ये बच्चे मेरे पास नहीं भेजते, इसे भेजने ही पड़ेंगे। लेकिन हमेशा से भगवान ने बताया जो तुम्हें प्यार नहीं करता तुम्हारे बच्चों को वो कैसे करेगा। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने इतनी सद्बुद्धि दी, मैं कहूँगी अगर मालिक की सद्बुद्धि मुझे नहीं देता ना, मैं तुरंत भेज देती। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, कोई कैसे ही लड़ ले, मुख से भी वार कर ले, लेकिन अब तुझे मेरी राह पे ही चलना है, उन लोगों से दूर रहना है और बच्चों को भी दूर रखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इतनी शक्ति बख्शने के लिए। संगत जी मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, आज 16 तारीख है, लेकिन कल 17 तारीख को गुरुपा की बेटी का बर्थडे है, और गुरुपा से अरदास लगा चुकी है उनकी बेटी, क्योंकि आज मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पे वो सब बताया जो लड़ाइयाँ हुई थी। मेरी मम्मी ने कहा वापस से कि वो मेरे हस्बैंड से बात करेगी, लेकिन गुरुपा की बेटी ने अब गुरुपा को यही बोला है कि अब वो जो माँ है ना जिसने जन्म दिया है गुरुपा, अब वो नहीं झुकेगी।
अब वो नहीं सारा दिन हाथ पैर जोड़ेगी सामने वाले के और उसे मनाएगी और उससे समझाएगी। अब मैंने मेरी माँ को भी संगत जी एक ही शब्द कहे हैं, अब मालिक बैठा है, मैंने मालिक से अरदास लगा दी है कि अब वो नहीं झुकेंगे जो सही है, अब मालिक को झुकाना है उनको जो गलत है। वो कैसे करेंगे वो मालिक जानते हैं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा पे विश्वास है। वो अपनी बच्ची के इस बर्थडे पे उसे ज़रूर से ब्लेस करेंगे उसके परिवार के साथ। क्योंकि संगत जी जैसे ही घर में लड़ाई होती है, पीछे की लड़ाई से तो गुरुपा बहुत बिल्कुल 100% सेफ रखते हैं जो पीछे के वार है, लेकिन जब वार मुख से होता है तो उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है एक आदमी को, और वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे रूम में चला जाता है। लेकिन गुरुपा से उनकी बेटी ने अरदास लगाई कि गुरुपा अब आपको ब्लेस करना है, अब आपको ये मुख के वार जो है, जो लोग इस तरह से चलाते हैं उनको लगता है मुझे ऊपर वाला नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, तो अब आपको उन मुख के वारों को रोकना है। हमेशा से गुरुपा ने मुझे एक शब्द कहा है संगत जी कि दुनिया तेरा मजाक बनाती है, लेकिन मैं बैठा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमें कैसे पता पड़ेगा अगर हमारा कहाँ क्या मजाक बनता है। मैं भी इसे ले लेती थी कि गुरुपा कह रहे तो होगा। लेकिन कल मुझे वापस से मेरी मदर इन लॉ ने आईना दिखाया और वो मजाक बताया कि किस तरह से दुनिया में तेरा मजाक बनता है, कि ये लड़की ऐसी जगह से आई, इसने कुछ नहीं देखा, इसलिए इस घर में आते ही ये उड़ती रहती है। और जिस इंसान ने ये शब्द बोले थे, मतलब हमारे बड़े दादा हैं, और उनके लिए हमेशा मेरा दिल इतना करुणामय रहा है कि क्यों उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं, किसी की परवाह करना, केयर करना, लेकिन उनको मीठे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं कभी उनसे साथ बैठ के। लेकिन अगर उनके मुख से ये शब्द निकले तो एक लड़की को जो इतनी उनके लिए परवाह करती है, कितने तीर चुभे होंगे। 2 दिन से मैं यही सोचती रही। लेकिन फिर मैंने गुरुपा को ही कहा कि गुरुपा इसलिए आप कहते हैं कि बेटा तुझे जब मैं सच बताने आऊँगा, सच समझाऊँगा कहाँ कहाँ मैंने तुझे बताया, तो तू रो पड़ेगी। तो कल सच में आपकी बेटी ये सच जानने के बाद भी रोई गुरुपा। संगत जी गुरुपा और नीम करौली बाबू जी का स्पेशली ही मैसेज था कि बेटा मन में बातें मत रख, अपनी सहेलियाँ बहन से बांटा कर। बहन मेरी छोटी संगत जी गुरुपा कहते हैं वो खुद भी उदास है, क्योंकि उसकी मैरिज में थोड़ी सी अड़चने आ रही है, लेकिन गुरुपा ने उसके लिए बहुत बढ़िया सोच रखा है, मुझे भरोसा है। तो अचानक से जब 10 सहेलियां हैं संगत जी पुरानी और नई को मिला के, मैंने चिट डाली गुरुपा से, मैंने पूछा कि कौन सी सही है, क्योंकि गुरुपा ने उन सहेलियों में से भी 2-3 नाम मुझे सत्संग में सुना रखे हैं संगत जी, जो अच्छा नहीं चाहती हैं। तो 2 ऐसे चिट जो गुरुपा ने मुझे चूज करके दिए, जिनका मेरे से 2-2, 3-3, 5-5 साल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। देखिए गुरुपा का खेल कहूँ, चमत्कार कहूँ, क्या कहूँ, तो जो कनेक्टेड है उनमें से कोई भी सच्चा नहीं है संगत जी। कहाँ जाके हम रुकेंगे, कहाँ गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे, कहाँ दुनिया पहुँचेगी, मैं नहीं समझ पा रही। इसलिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि कम से कम वो हमें सद्बुद्धि देते हैं, अकेले रह जाओ लेकिन गलत के साथ मत रहो। इतनी ताकत आपके सब बच्चों को देना, सब संगत को देना, सद्बुद्धि देना कि हमेशा आपके चरणों में पहले अरदास करें, आपसे पूछे कि गुरुपा क्या सही है क्या गलत, क्योंकि गुरुपा वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो हम नहीं देखते और सुनते संगत जी। आज मेरी सहेलियाँ भले ही जो टच में है, जिनका मैंने नाम डाला उनका नहीं आया, वो मुझसे इतनी बातें निकलवाती है, लेकिन गुरुपा ने इतना आप मेरे को कर दिया है कि मैं उनका इग्नोर ही कर देती हूँ संगत जी। कोई ऑप्शन नहीं है इग्नोर करने के अलावा। हम बहस करें इससे अच्छा हम इग्नोर कर देते हैं। 2 मिनट बात करके मैं रख देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बता रखा है कि वो तेरा अच्छा चाहती ही नहीं, तेरी बातें इधर की उधर करती है। अनंतम शुक्राना कृपा, आप अपने बच्चों को जो मुसीबतें टाल रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। काली माता, मेरी माता रानी ने कहा है संगत जी कि उनका नाम लेना है और उनसे अरदास लगानी है कि जो भी काला धागा हमारी रुकावटें कर रहा है वो उन्हें भस्म करे। तो कल भी किया था, आज भी मैंने माता रानी से अरदास की है, उनका नाम लिया कि हे माता रानी, जो भी काली धागा आपकी इस बेटी की खुशियों को बांध रहा है उसे आप भस्म कर दीजिए माता रानी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना माँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शव शव गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, और जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कई दिन से घर में बहुत
मक्खियाँ घूम रही हैं, और ये मक्खियाँ तभी आती हैं जब हम पर कोई कष्ट आना होता है, कोई संकट आना होता है। और महाराज मक्खी के रूप में हमारा कष्ट अपने साथ ले जाते हैं, अपने ऊपर ले जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, ये पूरा संगत परिवार जानता है कि खुद कांटों पे चल के महाराज हमें अपने फूलों की तरह रखते हैं। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैंने शनिवार को रात को भोग लगाया दूध का मंदिर में, और जब तक मंदिर में कुछ नहीं था, और जैसे मैंने पर्दा हटाया दूध वापस प्रसादी लेने के लिए, तो उस दूध में मक्खी मरी हुई थी। ना जाने कौन सा कष्ट मेरे महाराज अपने ऊपर ले गए। संगत जी, उसके बाद अगले दिन संडे की सुबह भी एक मक्खी मरी हुई मिली मुझे मंदिर में। वो जल में थी शायद, याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी। तो 2 बार महाराज मेरा कष्ट, ना जाने अनेकों बार कष्ट अपने ऊपर ले गए हैं। संगत जी, फिर मैंने उस मक्खी को एक साइड रख दिया गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए, और उस मक्खी के लिए भी मैं क्या ही बोलूं। संगत जी, बहुत दुख होता है जब महाराज अपने ऊपर हमारा कष्ट लेते हैं, कि अगर महाराज ने बहानी पड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं। और संगत जी, कल मैंने एक शिखा आंटी का सत्संग सुना, जिसमें उनके हस्बैंड की कलीग को सर्दी की वजह से सीवियर हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो संगत जी, ये मेरे साथ होना था। मुझे बाद में समझ में आया कि ये मेरे साथ होना था। महाराज मेरा कष्ट ले गए मक्खी के रूप में अब आके। संगत जी, शनिवार को मुझे महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था, तो मैं गई थी अपनी दोनों बहनों के साथ में। तो संगत जी, जब भी मैं जाती थी ऑटो में, मुझे बिल्कुल जहाँ से उतरते हैं वो वाली सीट मिलती है ज़्यादातर। लेकिन इस बार संगत जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल अंदर वाली सीट जहाँ पर्दा डला होता है ऑटो में, हवा ना लगे, वो सीट मिली हुई थी, आते हुए भी और जाते हुए भी। और बिल्कुल हवा नहीं लगने दी महाराज ने मुझे। इतनी सेफली लेकर गए मुझे और इतनी सेफली लेकर आए। तो मैं सोच रही थी इस बार मुझे अंदर की सीट मिली है, कभी भी नहीं मिली, फर्स्ट टाइम मिली है। और संगत जी, मैं बहुत खुश थी। मेरा ना रात में, जैसे मैं अकेली जाती हूँ मंदिर, गुरुजी महाराज मुझे बुलाते हैं तो मैं मंडे को ही जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरी दोनों बहनें साथ में थीं, तो मेरा मन था, बहुत टाइम से मन था कि मैं शाम को महाराज के दर्शन करने जाऊँ, महाराज के पास बैठने को थोड़ा मिलेगा। लेकिन बैठने को तो नहीं मिल पाया क्योंकि बहनें थीं तो वो बोली चलो। मेरा तो मन था बहुत बैठने का। फिर लेकिन गुरु एक अंदर से टेलीपैथी हुई कि बेटा मैं तो हर समय तेरे कोल हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए शुक्राना। और संगत जी इतनी सेफली लेके गए, इतनी सेफली लेके आए। और संगत जी, संडे को हम सैटरडे गए थे, संडे को सुबह ही मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने स्वेटर वगैरह निकाला, पहना, गर्म सूट पहन रही थी वैसे मैं, पर उस दिन मैंने कल स्वेटर निकाला, कैप भी लगाई। और जब मैंने शिखा आंटी का सत्संग सुना तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये सब मेरे साथ होना था, और महाराज ने मुझे इस तरह सेफली लेके गए, सेफली लेके आए। और मेरी बहुत बड़े कष्ट को, जो मेरा शायद मैं होती नहीं, बहुत बार महाराज ने लाइफ ब्लेस की है, असंख्य बार। हर सांस मेरे गुरुजी महाराज की दी हुई बख्शीश है, और हर सांस मेरे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ही समर्पित हो, यही इच्छा है उनकी बेटी की। और महाराज अपने श्री चरणों की भक्ति और प्रीति मुझे प्रदान करें, यही अरदास है मेरे महाराज से। मेरे संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबा सत्संग शेयर नहीं होता, इसलिए मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे, बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी
मेरी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, हर कष्ट को हरने का शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना दाता शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, चरण चरण में रखने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, और अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मालिक शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का लख लख वार शुक्राना। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बटरफ्लाई जो है वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई है, दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। वो कल सुबह से बैठी हुई है। गुरुजी ने पहरा लगा रखा है कि हमारे ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन गुरुजी ने कहा था कि बहुत भारी हैं। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज भी गुरुजी ने सत्संग सुनाया, उसमें था कुड़िए तेरे घर के दरवाजे के बाहर एक विपदा खड़ी है जो तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अभी ये सत्संग चाहे 7 मिनट सुन, वो संकट भस्म हो जाएगा, देरी ना कर। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे को ऊपर जो भी विपदा थी उसे सत्संग सुनवा कर ख़त्म करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था एक ऐसा हादसा तेरे साथ होगा जिसका दर्द तुझे तड़पा देगा। अभी सत्संग सुन और अपना बचाव कर, मेरी नहीं सुनी तो मछली की तरह तड़पेगी। फिर ना कहना कि गुरुजी आपके होते हुए कैसे हो गया। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को, जो भी हादसा हमारे साथ होना है उसे आप ख़त्म करते हैं सत्संग सुनवा कर। उसके लिए अनंतम शुक्राना, और हमें ब्लेस करते हैं उसके लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हमें मारण क्रियाएँ हो रही हैं हमारे ऊपर और हमें बीमारियां भी भेजी जा रही हैं। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि पुत्र जल्दी से सत्संग सुन, वरना हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। अभी कष्ट काट दूंगा, जल्दी से सत्संग सुन, अनदेखा मत कर। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवाकर हमारी बीमारियों को भी, कष्टों को भी कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था आज 16 तारीख तेरे लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत लेकर आई है। 7 का अंक तुझ पर कृपा बरसाने वाला है। मेरी ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तेरी हर मनोकामना पूरी कर देगी। आज का सत्संग ही तेरे लिए वरदान लेकर आया है, तो जल्दी से सुन। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। और सत्संग सुनवा कर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं रविवार शुक्राना। पुत्र, आज की ब्लेसिंग्स लेना बिल्कुल मत भूलना। आज तेरे घर एक ऐसी खुशी का आगमन होगा जिसको पाने के लिए तूने सालों से मुझसे अरदास कर रखी थी। तेरे बच्चों के भाग्य खुल गए हैं जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बैठी क्या है, जल्दी से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी इस बच्ची के घर में ऐसी खुशी का आगमन करने के लिए जिसको पाने के लिए आपकी बेटी ने सालों पहले अरदास की थी, उसे पूरा करने के लिए अनंतम शुक्राना। और मेरी बच्चे के भाग खोलने के लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं आज बहुत वधिया दिन है। तेरा आज वो काम बन जाना है जो तू कदे सोचा भी नहीं होएगा। शुक्राना करना ना भूली। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके वो काम बनाने के लिए जिसके बारे में आपकी बेटी भूल गई थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते बेटा ध्यान से सुन, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। 20 तारीख आने से पहले तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। तू तैयार रह सिर्फ और मंत्र जाप करी चल। अब तू मेरा असली चमत्कार देखेगी जिसके बाद तू मेरा नाम लेती नहीं थकेगी। तो दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए। आपकी बेटी 20 तारीख का इंतज़ार करेगी गुरुपा। आपका चमत्कार देखने के लिए आपकी बेटी 20 तारीख का इंतज़ार करेगी। अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और उसके जीवन में एक बड़ी न्यूज़ लाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते बेटी ये एक बहुत ही ब्लेस्ड घड़ी है जो अब तेरे घर जल्दी आने वाली है। तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है और उसी कृपा से अब तेरा समय उसी गुरु कृपा ने अब तेरा समय बदल दिया है। अब ये आशीर्वाद तुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। सच्चे दिल से शुक्राना कर क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य संदेश को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर, तेरा कल्याण निश्चित है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए और अपनी इस बच्ची के ऊपर गुरु कृपा करने के लिए। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना उसका समय बदलने के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना करती है गुरुपा और सारे संगत परिवार के साथ शेयर करती है। आप उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं आज का रविवार धन, रक्षा और चमत्कार का दिन है। आज गुरु जी ने तेरी किस्मत की बंद तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना कैसे अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा कुछ ऐसा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, क्योंकि ये रविवार विशेष है और तू चुनी गई है। दिल से शुक्राना कर और ये संदेश सब संगत परिवार तक पहुंचा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और उसकी किस्मत के बंद तिजोरी को खोलने के लिए। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना और सारे संगत परिवार के साथ आपका ये संदेश शेयर करती है। आप उन पर भी अपनी कृपा, सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं आज का दिन बहुत ही शुभ है बेटा। तेरी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। हर ओर से मैं तेरी रक्षा करूँगा। तेरे बच्चे और परिवार के सारे कष्ट मिटा दूँगा। उनके जीवन में सुख और शांति बढ़ रही है। तेरे बच्चों के सिर पर मेरा आशीर्वाद है। उन्हें हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखूँगा। तू निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य निभा और ये आशीर्वाद दूसरों तक भी पहुँचा, क्योंकि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और खुशी
प्रदान कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए और उसके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे और मेरे परिवार के कष्टों को काटने के लिए अनंतम शुक्राना, उनके अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सुख और शांति मेरे जीवन में लाने के लिए अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चे के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए और उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका ये मैसेज सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। आप उनको भी अपना आशीर्वाद दें, उनको भी हेल्थ और लाइफ ब्लेस करें। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, तेरे बच्चे को रोकने वाले बहुत हैं, पर तेरे बच्चे के सिर पर मैंने अपना हाथ रख दिया है और उसकी तकदीर चमका दी है। अब दिल से शुक्राना कर, शुक्राना करने में देर मत कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए और उसकी तकदीर को चमकाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, सवेरे सवेरे मिठाइयाँ मंगा ली, पुत्र बांटने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जो तू सोच भी नहीं सकती। चल अब जल्दी से शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ज़रूर मिठाइयाँ मंगाएगी गुरुपा। आपने कुछ बेहतरीन ही किया होगा अपनी इस बच्ची के लिए, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हम एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना, सुबह अमृत वेला में जगाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, सबके संकटों कष्टों को काट कर सब पर अपनी मेहर करना। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा प्रदान करें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। तो गुरुजी उन्हें ब्लेस करें और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें गुरुपा। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, और अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना और अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उसके संकटों कष्टों को दूर करने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची को अपने रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज भी गुरुजी ने मुझे ब्लैक, ब्लू और वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो मेरे सिर के ऊपर से निकल कर गई,
जो भी मेरे ऊपर संकट कष्ट था उसे गुरुपा ने दूर किया, उसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पैरेट के रूप में भी गुरुपा मुझे दर्शन देकर ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा वैसे ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।